Okay, good morning, my dear friends, students. So, students, in this chapter, we were on a last topic that is conservation of natural resources. Now, what is conservation? अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े regarding rocks, soil, mineral, that there are different type of minerals available in rocks and different type of rocks also. But why we have to conserve that natural resources? They are basically natural resources because rocks हैं, mineral हैं, वो हमें nature से मिलते हैं. So that means they are natural resources. ओके हमें उससे बहुत ही सारी प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस जेम्स, प्रेशियस क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं विथ नेचुरल रिसोर्सेज. सो वाई वी हैव टू कंजर्व दैट? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन इन योर टेक्स्ट बुक. First of all, it is written in that minerals and rocks are rich resources available on the earth. Minerals and rocks, एक तो they are very rich, and second thing is they are very precious resources which is available on our earth. So that is why we have to conserve that, because minerals और rocks हमारे लिए बहुत important है. Okay? रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. दैन उन मिनरल्स से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं लाइक क्रूड ऑयल. इन दैट वी आर गेटिंग पेट्रोल, diesel, kerosene, lubricant, different type of precious stones we are getting, precious metals we are getting like gold, silver, bronze, copper, etc. So that is why we have to conserve that precious minerals as well as precious rocks. Now further, the metals and salts provided by rocks are put to immense usage in our life. Now students, in our day-to-day life, we are using lots of metals and salts. Like metals, so gold मीन्स आपने अपने घर में अपनी मम्मा को देखा होगा, सिस्टर्स, ग्रैंड मदर, आंटी, सब आपने देखा होगा कि वो लोग गोल्ड पहनते हैं. ओके, बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल मेटल. Gold, diamond, silver, they are very beautiful. Okay, and in our day to day life we are also using metals like copper. हम कॉपर भी यूज़ करते हैं. ओके, आपके पूजा घर में, आपके मंदिर में कॉपर अवेलेबल होता ही है. सो एज वेल एज वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू स्टूडेंट्स, दैट अगर आप कॉपर के ग्लास में या कॉपर के बॉटल में पानी पियोगे तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है. इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी फॉर यू, for your health. So that is why if you want to drink water, then just put it in a copper means copper के glass में, otherwise copper bottle, as well as copper का pot is also now available. So if you want to drink water, you have to keep one copper पॉट और कॉपर बॉटल, कॉपर ग्लास इन योर हाउस, और उसी के अंदर आपको पानी पीना चाहिए, बिकॉज दैट कॉपर इज़ वेरी useful for your body. It is very useful for your health. So that is why copper is very precious. Okay, and we are using such metals and salts in our day to life. Salts भी हम use करते हैं. Salt is one type of mineral. So salt हम use करते हैं in everything. Vegetables में, even nowadays लोग जो हैं चपाती में भी use करते हैं. आपके घर में भी चपाती में salt use होता ही है. So salt is very useful for us. आपने notice किया होगा, अगर आपके घर में कोई fast रहता है ना, तो वो एक दिन के लिए वो लोग सॉल्ट नहीं खाते. अगर सपोज एक दिन के लिए फास्ट है तो सॉल्ट नहीं खाते. तो पता है सॉल्ट नहीं खाने से क्या होता है? बॉडी में वीकनेस हो जाती है, थोड़ा टायर्डनेस फील होता है. ओके, सो दैट इज़ वाई सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट मेंटेन्स दी ब्लड प्रेशर. जो आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसको मेंटेन रखता है. ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग मेटल्स एंड सॉल्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ. हम हमारे डे टू डे लाइफ में हम कंटिन्यूसली मेटल्स और सॉल्ट को यूज़ करते हैं. So that is why they are very rich resources. So that is why we have to conserve that, because हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको कंजर्व करना, उसको सेव करना, उसको बचाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, फर्दर similarly fossil fuel are precious gift from nature. Now what is fossil fuel? Coal, petroleum. Then in petroleum there are petrol, diesel, kerosene, lubricant, different things are available. So fossil fuel भी हमें it is very important to conserve that, because they are very precious gift. Precious मतलब एक तो बहुत ही important है हमारे day to day life के लिए. Just imagine if there is no petrol, no diesel, what will you do? आप लोग क्या करोगे?
कोई व्हीकल नहीं चलेगी, नथिंग, कुछ पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इट विल स्टॉप। ओके, अगर आपके पास पेट्रोलियम नहीं है, आपके पास क्रूड ऑयल नहीं है, तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी प्रेशियस गिफ्ट। Okay, further they are very limited and will not last forever. Here it is clearly written that they are very limited in nature. वो बहुत ही limited होता है और ज़्यादा फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए वो है भी नहीं। ओके, एक तो लिमिटेड में है, बहुत ही कम जगह पे आपको क्रूड ऑयल मिलता है। लाइक दुबई इज़ फेमस फॉर क्रूड ऑयल, लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो दुबई इज़ वेरी फेमस। उसके अलावा देर आर ओनली लिमिटेड कंट्रीज एंड स्टेट्स आर अवेलेबल जहाँ पे आपको पेट्रोल और डीजल मिलता है, वेरी लिमिटेड प्लेसेस। ओके, सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी लिमिटेड इन नेचर। Okay, so we have to conserve that, we have to save that crude oil. If we do not preserve and use them judicially, keep using them as fast as we are doing today, they will get exhausted or disappear quickly. So here it is clearly written, अगर आप लोग अपने क्रूड ऑयल को, जो आपका इतना प्रेशियस गिफ्ट है, अगर आप उसको कंजर्व नहीं करोगे, प्रिजर्व नहीं करोगे, उसको अच्छे से संभाल के यूज़ नहीं करोगे, तो दे विल गेट एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, फिर आप क्या करोगे? आपके फ्यूचर मीन्स आपके जो फ्यूचर में जो आने वाले लोग हैं वो क्या यूज़ करेंगे? जैसे हम इन आवर डे टू डे लाइफ हम कितना ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, व्हीकल्स यूज़ करते हैं। ओके, आप लोग अभी सिटी में जाओ, रोड पे निकलो, इतनी भीड़। टुडे ऑल्सो, टुडे इज़ कर्फ्यू, ओके, 2 दिन का कर्फ्यू है, बट देन ऑल्सो आई एम सीइंग ऑन रोड, मीन्स मैं अपने घर से बाहर देख रही हूँ, तो लॉट्स ऑफ व्हीकल्स आर रनिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी बिना किसी काम के लोग भी निकल जा रहे हैं इन कर्फ्यू ऑल्सो। So what they are doing? They are basically illegally they are doing such type of things, and which is not good for environment also. आप लोग फालतू के पेट्रोल डीजल जला रहे हो बिना किसी काम के, you are not preserving, and that is why they will get exhausted very fast. धीरे धीरे क्रूड ऑयल जो है कम होते जा रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा? जो हमारे फ्यूचर के लिए है उनके लिए कुछ होगा ही नहीं, तो अगेन सब लोग वापस से साइकिल पे आ जाएंगे, सब लोग वॉकिंग करेंगे। ओके, सो इसीलिए फॉर आवर फ्यूचर, जो हमारे फ्यूचर हैं उनके लिए हमें प्रिजर्व करना है सच क्रूड ऑयल, सच नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज दे आर वेरी प्रेशियस गिफ्ट। ओके, सी we should look for alternative sources of energy also, like the sun, wind and water. Solar energy, that is the energy from the sun, is one of the inexhaustible or unlimited natural sources of energy. Now हमें इसके लिए alternative ढूंढना चाहिए, like अब क्रूड ऑयल नहीं होगा, कोल नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, तो obviously there will be no electricity. ओके, ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कोल, तो मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ कोल देर आर इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रेजेंट इन योर हाउस। आपके हाउस में इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ कोल। बट अगर कोल ही नहीं होगा, बिकॉज वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ कोल। हम कोल भी बहुत यूज़ करते हैं। ओके, पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं। ओके, तो उससे क्या है, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बिकॉज सी होता है ना कि डिमांड इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कम। देखो लोग, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियसली यूसेज भी बढ़ रहा है इन चीज़ों का। ओके, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है यूसेज बढ़ता है, बट उतना उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, उतना वो हो नहीं रहा है, बिकॉज दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो इसीलिए उतना वो बन नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए हमें उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। मीन्स उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सपोज़ कोल ख़त्म हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई, तब आप क्या करोगे? तो द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज़ सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी। सोलार एनर्जी वो एनर्जी है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली एनर्जी है। ओके, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ सोलार एनर्जी। अब सोलार एनर्जी क्या होता है? सन से, ओके, विथ सन
हम लोगों को सन से एनर्जी जो है वो कंज्यूम मीन्स प्रिजर्व करना है और फिर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। और अभी बहुत सारी जगह पे ये हो रहा है, लाइक जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे ये सोलार एनर्जी जो है लगा रहता है। आपने कभी टेरेस पे देखा होगा, वाइट आई थिंक वाइट कलर की शीट जैसी होती है, ओके वो बहुत से ऐसे फेमस बिल्डिंग्स में या मल्टीप्लेक्सेस पे लगे रहते हैं, ओके तो वो क्या करते हैं, वो सन से एनर्जी जो है प्रिजर्व करते रहते हैं और जब लाइट चली जाती है तब उससे जो है लाइट हमेशा जलती है, ओके तो आप ऐसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हो जिससे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रिजर्व रहे और आपके पास ऑल्टरनेटिव भी हो, ओके। फर्दर, इट डज़ नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन एंड कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऑब्वियसली आप सन से एनर्जी ले रहे हो, सनलाइट उसमें प्रिजर्व कर रहे हो, ओके तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो तो कितना बिल आता है, घर में देखा ही होगा आपने, ओके तो अगर आप सोलार एनर्जी यूज़ करोगे तो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, ओके। वी शुड ऑल्सो यूज़ नेचर्स बाउंटी जुडिशियली एंड thoughtfully so that these resources can be available for future generation. So जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे तो, okay so we have to use that thing in a प्रॉपर मैनर। ऐसे यूज़ करो कि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बना रहे, एज वेल एज़ यू हैव टू यूज़ ऑल्टरनेटिव्स। हमें ऑल्टरनेटिव को भी यूज़ करना चाहिए, लाइक लॉट्स ऑफ जगह पे सोलार एनर्जी आर यूजिंग, बहुत सारी जगहों पे सोलार एनर्जी जो है यूज़ किया जा रहा है। सो वी हैव टू ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टू डू सच थिंग्स, ओके जिससे कि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज़ें बची रहें, लाइक पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, एवरीथिंग, okay so this is the last topic of this chapter, that is conservation of natural resources. So students, if you have any problem, any doubt regarding this topic, you can ask me anytime, okay students, thank you.